Hello everyone, welcome back to this channel. I hope you all are doing great, and in this video I'm going to talk about what I learned from my first year of teaching experience in a school. I'm going to share every single thing which I learned and which helped me. There are some of the points which really helped me in growing in my teaching experience, in my teaching journey. So let's start. Okay, so the very first point is teaching is not all about the subjects. Okay, I can understand that in a school, in a class, we have a lot of subjects, and covering all of them is also very important because every subject has its own syllabus and has its own burden. So it is important for a teacher to cover all the subjects, to cover all the syllabus in a particular time. But if you are a pre-primary teacher, then it is very important for you that you have so many innovative ideas so that you can conduct a lot of activities in your class, because pre-primary classes is all about activities. They don't know about the subjects, they don't know about the syllabus at all. Okay, they just want to play, they just want to learn. And in pre-primary classes it is really important that we are focusing towards the towards the holistic development of the child, because that is the most important point for them. सो इफ़ यू आर अ प्री प्राइमरी टीचर, मेक श्योर आप अपनी क्लासेस में बहुत बहुत सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर रहे हैं, आप हर एक्टिविटी करवा रहे हैं, आप हर टॉपिक के साथ एक्टिविटी करवा रहे हैं, सो दैट आपका सिलेबस भी कवर हो जाए और एक्टिविटी भी हो जाए और बच्चे के माइंड में वो कॉन्सेप्ट भी बैठ जाए. Okay, so second point is planning saves you. Planning really saves you. Planning saves your time. Planning makes your teaching healthy. Okay, if you plan your day, if you plan your period, and if you plan कि आज हमें क्या क्या करना है पूरे दिन, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा कि आप अपने बच्चे को इस टॉपिक के साथ ये एक्टिविटी करवाएंगे. आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू नो कि इस पीरियड में मुझे ये करवाना है. तो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर कि वो अपनी प्लानिंग को साथ लेके चल रही है ताकि उसको प्रॉब्लम नहीं आ रही. Okay, third point is every child is different. Make sure you always remember this point, because if you have a class of 22 children, every child will be different. If you are comparing two of them, if you are comparing them with each other now, then कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, because they are different. They have their own pace of learning. They have their own pace of writing. If you are forcing them, if you are putting some kind of pressure on them ना, वो नहीं कर पाएंगे. तो आपको ही उनके साथ बहुत पेशेंट होना पड़ेगा, बहुत सॉफ्ट होना पड़ेगा, बिकॉज दे आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम यू. You are their role model and they are genuinely learning something from you. The behavior you are showing to them, आप कुछ भी उनके सामने कर रहे हो, कुछ भी, वो आपको बहुत अच्छे से नोटिस करते हैं और वो चीज़ करने की कोशिश करते हैं. This is the only reason I always mention in my videos that teacher, you are their role models and they are learning something nice from you. So make sure आप उनके सामने अच्छे से ही रहते हैं, अच्छे से बात करते हैं, आप उनके बारे में बुरा नहीं बोलते, because they have their own pace of learning. They are different. Okay. Now the fourth point is you will make mistakes, and that's okay. The very important point is if you are a young teacher, you will make a lot of mistakes in your teaching style, in your teaching, and it's fine too. Okay, if you are experienced, if you are young, you cannot be good in everything. आप हर चीज़ में अच्छे नहीं हो सकते हैं. कोई चीज़ आपकी ख़राब भी होगी, कोई चीज़ आपकी अच्छी भी होगी. तो मेक श्योर कि एज अ टीचर आप खुद पर भी प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, बिकॉज अगर आप ठीक रहोगे, अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, तो बच्चे की मेंटल हेल्थ अपने आप ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि आप उस पर कोई प्रेशर नहीं डालोगे. बट अगर आप बहुत सारा स्ट्रेस लेकर आओगे स्कूल में, तो फॉर श्योर आपका गुस्सा सिर्फ बच्चों पे उतरेगा. तो इट्स बेटर कि आपके साथ अगर कुछ भी हो रहा है, अगर आपसे कोई गलती भी हो रही है ना, एंड दैट्स ओके, इट विल बी फाइन वेरी सून, बिकॉज यू आर अ यंग टीचर एंड यू आर लर्निंग, एंड दैट्स फाइन. Next point is student notices everything. As I already mentioned this point, students really notice every single thing. Okay, अगर आप उनके बारे में कुछ भी बात कर रहे हैं, कुछ रॉन्ग हो, कुछ अच्छी हो, कुछ भी, वो भी सुन लेते हैं. हमें ऐसा लगता है कि नहीं सुना, हमें ऐसा लगता है कि क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता. बच्चे जो सुनते हैं वो उनके दिमाग में बैठ जाता है और उसको निकालना फिर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो अपना पर्सपेक्टिव ही वैसा बना लेते हैं. इफ़ यू आर सेइंग दैट दिस किड इज़ वेरी लेज़ी, वो काम ही नहीं करना चाहता, तो वो अपने माइंड में यही सोचेगा कि मेरे को मैम ने लेज़ी कहा था और मैम ने मुझे कहा था कि मैं काम नहीं कर सकता. इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू आर सेइंग अबाउट दैम, बिकॉज टू देम एवरी सिंगल थिंग, एवरी सिंगल वर्ड ऑफ योर्स मैटर्स, बिकॉज यू आर देयर रोल मॉडल. एंड उनको ऐसा लगता है कि मेरी मैम ने जो बोल दिया ना वो बिल्कुल सही बोला है. अगर आपने बोला ना घर जाके पढ़ाई करनी है, वो पढ़ाई भी करेंगे, बिकॉज यू आर देयर रोल मॉडल एंड वो आपको सच में बहुत ज़्यादा मानते हैं. तो इट्स बेटर फॉर यू कि आप उनके बारे में कुछ बुरा ना बोलें, आप उनके बारे में हमेशा सिर्फ अच्छा बोलें, और कुछ गलती अगर कर भी रहे हैं ना वो, तो उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करें, बहुत हेल्प करें उनकी, क्योंकि आपके लिए वो चीज़ बहुत छोटी होगी बट उनके लिए वो चीज़ बहुत बड़ी है. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर एनर्जी सेट्स द टोन. इफ़ यू आर अ टीचर हु हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी, हु इज़ वेरी पैशनेट टुवर्ड्स अ वर्क, फॉर श्योर उनको वो भी बहुत बेटर वे में लर्न करेंगे.
एंड इफ क्लास ही बहुत लेजी है, इफ टीचर ही बहुत लेजी है, इफ टीचर ही टेबल पे आके सिर्फ बैठ रही है, वो क्या ही सीख लेंगे। आपकी एनर्जी कितनी है ना, वो क्लास की टोन सेट करती है। ओके, एंड सेम अगर टीचर एनर्जेटिक है ना, तो बच्चा अपने आप पूरा एनर्जी से भरा हुआ है। तो इट्स ऑल अप टू यू, आप अपनी क्लास की टोन कैसी रख रहे हैं, एनर्जी या लेजी, इट्स ऑल अप टू यू। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेज देम। दे रियली वॉन्ट कि आप उनको अप्रिशिएट करें वट एवर दे आर डूइंग। अगर उन्होंने कल से बेहतर काम आज किया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम कि मेरी टीचर ने मुझे प्रेज किया है, मेरी टीचर ने मुझे अप्रिशिएट किया है। For them, appreciation matters the most. So make sure teachers, you always appreciate them. वो छोटा सा भी कुछ करे, appreciate them because they really want appreciation from them. और इसी चीज़ से क्या होता है कि वो रोज़ स्कूल आना चाहते हैं। तो इट्स बेटर फॉर यू कि आप उनको अप्रिशिएट करें और उनको बताएं कि वो सच में लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो हर चीज़ में अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पेरेंट कम्युनिकेशन इज द की। समटाइम्स व्हाट हैपेंस दैट देयर आर लॉट ऑफ पेरेंट्स जो सुनना नहीं चाहते, जो जिनको लगता है कि मेरा बच्चा सबसे ऊपर है, मेरे बच्चे ने कुछ गलती नहीं करी। तो इट्स बेटर टू कम्युनिकेट विद देम, इट्स बेटर टू मेक देम अंडरस्टैंड योर पॉइंट्स एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड देयर पॉइंट्स, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक। इफ आप उनको कुछ समझा रहे हैं तो आपको भी समझना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और उसी में क्या होता है कि एक सॉल्यूशन निकल जाता है उस बच्चे के लिए कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर आप क्लास में कोई भी इशू देख रहे हैं उस बच्चे में, तो इट्स इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। आप एक बार खुलकर बात कर लो, एक बार कम्युनिकेट करो उनके साथ, ताकि वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं सॉल्व हो जाए। सो कम्युनिकेशन इज द की। नेक्स्ट पॉइंट इज यू विल लर्न मोर देन यू टीच फॉर श्योर। एज आई मैंशन कि हम ट्रेनिंग लेते हैं टीचर्स, हम इंटर्नशिप्स करते हैं एंड वी गॉट टू नो अ लॉट फ्रॉम देम, लॉट ऑफ लाइक यू नो, जब भी हम इंटर्नशिप करते हैं बहुत कुछ सीखते हैं, बट असली हम तब सीखते हैं जब हम जेन्युइनली में जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं और वो बच्चे हमारी प्रायोरिटी होते हैं, वो बच्चे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, तब हम और अच्छा सीखते हैं। ओके, सो फॉर श्योर आपने जो भी अपने इंटर्नशिप में सीखा वो बहुत अच्छा था, बट अब जो आप सीख रहे हैं वो उससे भी अच्छा होगा, बिकॉज दिस टाइम यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम देम। ओके, मतलब वो इतना प्यार आपको देते हैं स्कूल में बच्चे कि आपको लगता है यार आई एम सो ग्रेटफुल, मेरे दोनों हाथ भर चुके हैं उनके प्यार से, जेन्युइनली इट फील्स लाइक दिस। ओके, सो टू एवरी यंग टीचर आउट देयर, you are doing better than you think, trust me. So this is all about this video, teachers. We'll see you in the next video. Till then, bye bye. If you like this video, don't forget to subscribe the channel. We'll see you. Bye bye.